Good morning, team. Good morning, ma'am. How are you all? Yeah, good, ma'am. Thank you. How are you, ma'am? I'm good. Thanks for asking. I'll be sharing my screen. Just let me know if it is visible or not. Is it visible, guys? Yes. Yes, ma'am. Okay. I would request you guys to mute yourself. Okay. Only if it is required, then you can unmute yourself and speak. Rest all the time, you can be on mute. So, guys, Sorry. this is the. Yeah. Hello. Yeah, sorry, Yes. Aditi. Just a minute, okay? No Farhan and problem. others, as I have told you to just attend the meeting and payment and everything will let you know, okay? Yeah, you can proceed. Okay. So guys, this is the tool that you will be working on. So this is Shape tool wherein you guys will be transcribing for the project drone. Okay. So we will be creating the username for you guys. So you have to put your username over here and then you will get an option to create your password. So once you will create your password and you enter your password over here, you will have to click on submit. So once you click on submit, this will be the screen that will be visible. So you guys will see that you will be having this transcribe option. But few of you, maybe the one who's leading the team or who's a manager or who is the main vendor, will get this controller option as well. Okay. For everyone, it is not necessary that they will get controller and transcribe both. So the one who is going to transcribe, who are the users for a particular vendor, they will get this option. But the one who are leading a team, who are appointed as the leaders, they will get this controller option as well. Okay. Now with this controller option, you guys have to, the leaders, what they'll do is, we from Shape will assign, let's say, let me give you an example. Let's say we from Shape give you 100 files, assign you 100 files in your pool with the name of your vendor. Okay. And all those files, what you will do, what the team leader will do is they will go to controller option and they will assign those files to their respective Uh, users controller option. Aditi, Yes. ma'am. Mhm. Sorry for disturbance. Ma'am, can you explain in Hindi because other peoples can understand Hindi? Is it okay with everyone? Yes, ma'am. Most of the people are Hindi only. So Okay, all okay. I was people not are aware English. of this. So Yeah. that's okay. I will. Do you want me to start again? No, Ab ma'am. up. From here you can start. Okay, okay, okay. ओके Thank you. सो गाइस कंट्रोलर ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ इस अपने जो भी आपका रिस्पेक्टिव टीम लीडर होगा या फिर जो भी लीड कर रहे हैं टीम को या फिर जो भी वेंडर है वो क्या करेंगे कंट्रोलर ऑप्शन में जाने के बाद जितनी भी फाइल शेप आपको असाइन करेगा वहां से आप वो फाइल उठा के अपने रिस्पेक्टिव यूजर्स को सेंड कर सकते हैं तो मान लो कि जैसे कि ये सारी फाइल्स आपको नजर आ रही हैं आपको इनमें से दो फाइल किसी एक यूजर को देनी है तो आप ये चेकबॉक्स जो दिख रहा है ना आपको इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद यहाँ पे लोडिंग लिखा आ जाएगा यहाँ पे एकदम कॉर्नर मोस्ट वाले एरिया में तो जब यहाँ पे लोड हो जाएगा तो यहाँ पे टीआर का ऑप्शन दिख रहा है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन तो आप किसी यूजर को ट्रांसक्रिप्शन के लिए फाइल असाइन करना चाहते हैं तो आप इस ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने यहाँ सर्च ऑप्शन पे आप उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम टाइप कर देंगे लेट्स से उसका नाम आदित्य है तो यहाँ पे लिस्ट में जितने भी आदित्य होंगे वो आ जाएंगे आपको जिस किसी को भी फाइल असाइन करनी है आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल वो ये जो भी दो फाइल्स आपने सेलेक्ट किए वो उसके पूल में चली जाएगी उसके अकाउंट में चली जाएगी ठीक है अगर आपको 5 फाइल करनी है 10 फाइल करनी है या फिर किसी यूजर को एक ही फाइल करनी है तो आप इसी तरह से फाइल असाइन करेंगे
तो ये तो था कंट्रोलर ऑप्शन का काम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप वो फाइल जब कंट्रोलर ऑप्शन से वो फाइल आप किसी ट्रांसक्राइबर को असाइन करते हो, तो ट्रांसक्राइबर उसको उस फाइल के ऊपर वर्क कैसे करेगा? वो ट्रांसक्राइब ऑप्शन में जाएगा और यहाँ पे उसको ये सारी फाइल्स नजर आएंगी। तो जो भी दो फाइल आपके कंट्रोलर या आपके जो टीम लीडर ने आपको असाइन की है, वो फाइल होगी, वो आपके न्यू फाइल के फोल्डर में आ जाएंगी। सो न्यू फाइल्स बेसिकली वो सारी फाइल्स है जिसके ऊपर अभी आपने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, जो अभी आपको फ्रेश फाइल असाइन की गई है। ड्राफ्ट में वो सारी फाइल्स होंगी गाइस जिसके ऊपर वर्क आपने मे बी इनकम्प्लीट रखा हुआ है, या फिर वर्क कंप्लीट करने के बाद भी आपने उस फाइल को सबमिट नहीं किया है। ओके, मे बी आप अगर किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और चीज दिमाग में आ गई जो आपको करनी है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको कोई इमरजेंसी अटेंड करनी है, और लेट्स से अगर आपका कोई कॉल आ गया है इंपॉर्टेंट, तो आपको अपना वर्क डिसकंटिन्यू करना है। सो ऐसे कोई भी XYZ जो भी आपको है, आपके जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको करना है पहले। तो आप उस फाइल के ऊपर वर्क डिसकंटिन्यू करके, उस फाइल को क्लोज करके आप अपना दूसरा वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। और मान लो कि आप थोड़ी देर बाद, लेट्स से 1 घंटे 2 घंटे या फिर नेक्स्ट डे आप उस फाइल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो आप ड्राफ्ट में जाके जब उसको ओपन करेंगे, तो आप जहां आपने काम छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंप्लीटेड ऑप्शंस में गाइस आपको वो सारी फाइल्स मिलेंगी जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, जो आपने सेंड भी कर दी है, सबमिट भी कर दी है, उन सबका काउंट आपको कंप्लीटेड ऑप्शन में नजर आएगा। उसके अलावा जब हम दूसरी साइड आते हैं, तो यहाँ आपको 1 और 2 लिखा दिखता है, दैट इज नथिंग बट द यूजर मैनुअल, यूजर गाइड कह सकते हैं इस टूल की। तो इस टूल में बेसिकली क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेविगेशन कैसे करना है इस टूल में, इसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है। तो गाइस ये ठीक उसी तरह से काम करता है। लेट्स से आप मार्केट में अगर आपने कोई अप्लायंस परचेज की है, तो जब आप वो अप्लायंस को परचेज करते हो, तो आपको हमेशा साथ में एक यूजर मैनुअल या यूजर गाइड मिलता है, राइट? और वहां उस यूजर गाइड को आप ओपन करने के बाद ये पता लगाते हो, या फिर आप ऐसे ही गो थ्रू करते हो कि बेसिकली ये जो अप्लायंस आपने खरीदी है वो चलती कैसे है और उसके क्या क्या फीचर्स है। तो सेम वे में आप इन दोनों को एक्सेस करके इस पर्टिकुलर टूल के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये गाइडलाइंस का ऑप्शन है। यहाँ पे जितना भी प्रोजेक्ट, जो जिस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हो, उसकी गाइडलाइंस अपलोड की जाती है। बट यहाँ पे हम गाइडलाइंस अपलोड नहीं करते। इट्स बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्क करते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर एक लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जो गाइडलाइंस होती है वो वेंडर को शेयर करते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव यूजर्स के साथ शेयर कर देता है। सो ओवर हियर एज ऑफ नाउ हमें कुछ मिलेगा नहीं। नाउ दिस इज क्वेरी और फीडबैक। यहाँ पे बेसिकली वो सारे आपको क्वेरी डालने हैं जो कि टेक्निकल रिलेटेड हो। लेट्स से अगर आप किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी तरह का टेक्निकल ग्लिच फेस हो रहा है उस फाइल में, और उस टेक्निकल ग्लिच की वजह से या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप फाइल के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप जब ऑडियो प्ले करो तो ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप टैग इंसर्ट कर रहे हो लेकिन टैग इंसर्ट नहीं हो रहा, या फिर टैग का लिस्ट नहीं आ रहा, किसी भी तरह का टेक्निकल इश्यूज अगर आपको फाइल में हो रहा है, तो आप वो सब यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ आप अगर चाहें तो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं 15-20 सेकंड के लिए, और यहाँ चूज फाइल पे जाके उसको अटैच करके सेंड करेंगे। तो हमारा जो बैकएंड टीम है उनको इजी हो जाएगा ये पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, और आपको इसका सोल्यूशन फिर ASAP जल्दी ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो भी आपको इश्यूज मेंशन करना है वो टेक्निकल रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रोसेस रिलेटेड डाउट्स पूछ रहे हो कि ये टैग कहाँ लगेगा, ये चीज कहाँ जाएगी। ऐसा कुछ भी यहाँ मत डालना, क्योंकि बैकएंड टीम जो है उनको ये सब चीजें नहीं पता होती है। अगर आपको प्रोसेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जो भी आपका आपके जो भी टीम लीड्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे होम बटन का ऑप्शन है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम राइट उसी ऑप्शन पे आ जाएंगे जहाँ पे ट्रांसक्राइब और कंट्रोलर का ऑप्शन नजर आ रहा था। एंड यहाँ पे आपका प्रोफाइल और लॉग आउट डिटेल्स है। अभी तक कोई क्वेश्चंस है किसी को गाइस? मैडम आईडी हमने खुद बनानी है, आप प्रोवाइड करेंगे? आईडी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा कुछ अभी तक जो कुछ भी मैंने समझाया उसमें कुछ क्वेश्चन हैं आपको? नो। ऑल राइट, ओके।
सो अब लेट्स से अगर हम किसी एक फाइल को ओपन करें, तो अब मैंने न्यू फोल्डर में जाके लेट्स से अगर मैं ये वाली फाइल को ओपन करती हूँ, तो आपको फाइल कुछ इस तरह से नजर आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टूल का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन चेंज हो जा रहा है। यहाँ सबसे कॉर्नर मोस्ट एरिया में आप देखेंगे TR लिखा है, विच मीन्स आपको ट्रांसक्राइबर का राइट असाइन किया हुआ है। आप इस फाइल के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं, आप एक ट्रांसक्राइबर है। अगर यहाँ QA लिखा होगा तो दैट मीन्स आप इस फाइल के ऊपर QA मतलब क्वालिटी ऑडिट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज में हम TR ही करते हैं और आप सब लोग इनिशियली अभी TR ही करोगे, तो आप सब लोगों को यहाँ पे TR का ही ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, फ्यूचर में अगर आप जान कभी आप QA करते हो फाइल पे, तो आपको यहाँ पे QA का राइट्स असाइन किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो आपको एक यूनिक नंबर दिख रहा है जो कि है फाइल ID या फिर फाइल नंबर बोल सकते हैं हम इसको। सो ये बेसिकली एक यूनिक नंबर है, हर फाइल का डिफरेंट नंबर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन सी फाइल पे वर्क कर रहे हो, या अगर आपको किसी फाइल में इश्यू है, और अगर कोई आपसे बोलता है कि आप अपना फाइल सेंड करो, तो आप फाइल सेंड करोगे मतलब आप कोई लिंक शेयर नहीं करोगे यहाँ से, आप ये फाइल ID या ये फाइल नंबर के थ्रू इस फाइल को एड्रेस करोगे। तो आप बेसिकली ये वाला नंबर सेंड करोगे दैट आई एम फेसिंग एन इशू विद दिस फाइल नंबर, मुझे ये वाली फाइल नंबर में इशू आ रहा है। तो आपका अपनी जो भी फाइल पे आप वर्क कर रहे हैं उसको एड्रेस करने का तरीका, उस फाइल के बारे में बात करने का तरीका ये नंबर से होगा। ऐसे नहीं होगा कि उस फाइल में 2 स्पीकर थे और वो ये बात कर रहे थे या वो बात कर रहे थे, उसका जो भी एड्रेस करने का तरीका होगा वो इस फाइल ID से होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 1 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम दोबारा से नहीं करेंगे। बट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आता है स्पीकर्स। अब आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे स्पीकर डिटेल्स दिखती है कि इस ऑडियो में जो कि ड्यूअल चैनल फाइल है, आपको दिख रहा होगा ऊपर एक लाइन है जिसके ऊपर वेव्स बनी हुई है, नीचे एक लाइन है जिसपे वेव्स बनी है, और यहाँ लिखा हुआ है चैनल 1 और नीचे चैनल 2। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे ड्यूअल चैनल फाइल है, एक होता है राइट साइड स्पीकर, एक होता है लेफ्ट साइड स्पीकर। अब ये कैसे बाइफरकेट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या होता है, हर एक चैनल पे सिर्फ एक स्पीकर बात कर रहा है, तो इस ऊपर वाले चैनल के ऊपर एक स्पीकर बोल रहा होगा और नीचे वाले चैनल पे एक स्पीकर बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्पीकर्स हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर का डिटेल्स दिया हुआ है। पहला स्पीकर जो है वो लेफ्ट स्पीकर, ये अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ से हमें लिंक करना पड़ेगा स्पीकर। तो लेट्स से जब आपने ऑडियो प्ले किया और जो पहला स्पीकर बोल रहा था वो था मेल, बट यहाँ लिखा है फीमेल, तो विच मीन्स ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मिसमैच है। तो आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इसको मेल कर देंगे और इसको यहाँ पे नीचे जाके सेव कर देंगे। ये सेम चीज एप्लीकेबल है आपके स्पीकर 2 के साथ। ठीक है, नाउ एक सेकेंड, अब मैंने कैंसिल कर दिया, सब उड़ गया। ओके। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि ये जो डिटेल है वो डिटेल सिर्फ इनकरेक्ट है इसीलिए आप चेंज करेंगे, तो वही चीज पे हम रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिटेल्स आपका फीमेल का ही आवाज आ रहा है बट आप उसको मेल बना रहे हो। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मैच है, अगर ये फीमेल की ही आवाज है तो आप उसको फीमेल ही रहने देंगे, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर उसके अंदर मेल की आवाज और यहाँ फीमेल लिखा है तो आप चेंज करेंगे, वरना एज इट इज रहने देंगे। सेम इज एप्लीकेबल विद द सेकंड स्पीकर। अपार्ट फ्रॉम द जेंडर डिटेल्स आप बाकी सारी कोई भी डिटेल्स इसमें चेंज नहीं करेंगे। आपके हिसाब से चाहे वो डिटेल गलत हो या सही हो, उसको एज इट इज ही रहने देना है। हमें सिर्फ जेंडर डिटेल्स को ही चेंज करना है, वो भी अगर ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन गाइडलाइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम दोबारा से नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है अगर आप इसे ओपन करते हो तो ये है टूल शॉर्टकट लिस्ट। इस पर्टिकुलर जो टूल जो हम यूज करें इसमें क्या क्या शॉर्टकट कीज एप्लीकेबल है, ये सारी शॉर्टकट कीज हमारी नॉर्मल शॉर्टकट की से अलग है गाइस। तो जैसे हम Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z जो करते हैं, यहाँ पे इस तरह से वो वाली सारी शॉर्टकट कीज ना यूज होते हुए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए दूसरे शॉर्टकट कीज है। ठीक है, तो अगर आपको अपना डेटा सेव करना है तो आपको Alt+A दबाना पड़ेगा। अगर आपको अपना एक सेगमेंट तोड़ना है तो शिफ्ट और एंटर दबाना पड़ेगा। अगर आपको अपना सेगमेंट
डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो उसके लिए ये दबाना पड़ेगा। तो कभी भी जब आप वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी आप शुरुआत में जब काम करेंगे तो आपको याद नहीं रहने वाली है ये किसी भी तरह की शॉर्टकट कीज, तो आपको हमेशा इसको रेफर ही करना पड़ेगा। तो आप कभी भी अपने ट्रांसक्रिप्शन के बीच में इसको प्रेस करके ये शॉर्टकट की का लिस्ट ओपन कर सकते हैं और इसको व्यू कर सकते हैं, और यहाँ से आप ले सकते हैं कोई भी शॉर्टकट की का रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है ओवरलैप सेगमेंट्स। ये वाला जो राउंड कलर है, राउंड का जो राउंड में जो है ओवरलैप सेगमेंट्स का जो आइकन है, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, सो प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा। फिर आता है कमेंट्स। सो गाइज यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने अपनी किसी फाइल के ऊपर वर्क किया और वर्क करने के बाद यहाँ पे देखो सेंड का बटन है। सेंड का, आप जब भी किसी फाइल पे वर्क कंप्लीट करेंगे आप उसको सेंड करेंगे। नाउ लेट्स से जब आपने फाइल सेंड की, तो फाइल सेंड करने के बाद आपको पता चला कि जो आपका क्वालिटी पर्सन है, जो भी इस फाइल के ऊपर क्वालिटी कर रहा है या फिर जो भी ये चेक कर रहा है कि आपने फाइल अच्छे से वर्क किया है फाइल पे या नहीं, बट उस क्वालिटी पर्सन को लगता है कि आपने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, तो वो ये फाइल आपको दोबारा से दे देगा काम करने के लिए, आपको रीअसाइन कर देगा। वो बोलेगा आपको आके कि आप इसके ऊपर वापस से काम कीजिए। लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही नहीं करेगा, वो फाइल रीअसाइन करेगा और यहाँ पे कमेंट्स में सब कुछ मेंशन करेगा कि आपको फाइल रीअसाइन रीवर्क के लिए क्यों दी गई है, आपने कहाँ कहाँ एरर किए हैं। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई फाइल रीवर्क के लिए आती है तो आप इस कमेंट वाले बॉक्स को ओपन करके देख सकते हैं, क्यूए ने यहाँ लिखा होगा सब कुछ कि आपको फाइल वापस क्यों दी गई है काम करने के लिए, आपने क्या क्या ऐसे एरर्स किए हैं, और वो एरर पढ़ के आप सिर्फ खाली वही एरर ठीक करके फाइल दोबारा सेंड नहीं करेंगे, पूरी फाइल में हो सकता है आपने वो एरर्स किए हो, तो आपको पूरी फाइल ठीक से चेक करनी है, वापस से काम करना है और फिर सेंड करना है। ऐसा नहीं कि इसने बोला है कि आपने एक 2 नंबर बॉक्स में गलती की है तो आप वो 2 नंबर का बॉक्स ही करो। हो सकता है अगर आपने उसी अप्रोच से वो काम किया है तो हो सकता है पूरे फाइल में वो एरर हो। ठीक है, तो आप पूरा ये कमेंट यहाँ से रीड करके अपने फाइल पे पूरी तरह से रीवर्क करके करने के बाद ही इस फाइल को दोबारा से सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी और फीडबैक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइल पे वर्क स्टार्ट कैसे करना है, आपको फाइल में स्पीकर को लिंक कैसे करना है। अभी तक किसी के कोई क्वेश्चंस है गाइस? No, ma'am. ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो रूल ये है फाइल पे वर्क करने का वो यही है कि आप हेडसेट पहनेंगे या अपने स्पीकर जो भी आपको अपने ईयरफोन्स कनेक्ट करने हैं या हेडसेट्स पहनने, आप वो पहनेंगे। वो पहनने के बाद आप ऑडियो प्ले करेंगे। आप खाली ऐसे ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर आप बिना हेडसेट्स के ये ड्यूअल चैनल फाइल को एक्सेस करेंगे, बिना हेडसेट्स लगाए सुनेंगे, तो आप अपने स्पीकर्स को लिंक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे स्टेप है वो है हेडसेट्स पहनना या फिर ईयरफोन्स लगाना, और उसके बाद आप इस ऑडियो को प्ले करेंगे। जब आप इस ऑडियो को प्ले करेंगे तो आपको जो पहला स्पीकर जो इस ऑडियो में बोलेगा, उस पहले स्पीकर की आवाज या तो राइट हैंड साइड के हेडफोन में आएगी या लेफ्ट हैंड साइड के हेडफोन में आएगी, किसी एक में ही आएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबको पहले राइट में आए और फिर दूसरे स्पीकर की लेफ्ट में आए, ये जरूरी नहीं है। लेट्स से मैंने ये ऑडियो प्ले किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब ये जो भी बोली, अब जो भी पहला स्पीकर इसमें था जिसने पहले बोला उसकी आवाज मान लो कि आपको राइट हैंड साइड में आई, तो ऑब्वियसली फिर दूसरा स्पीकर लेफ्ट हैंड साइड वाला हुआ आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है आपको पिन जैसा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चैनल 1 मतलब जो पहला स्पीकर था आपको उसकी आवाज आपके राइट हैंड साइड में आई, तो आप वहां राइट चैनल 1 पे राइट दबाएंगे तो चैनल 2 ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो होता नहीं है गाइस। ठीक है, तो अगर मान लो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पहले स्पीकर की आवाज है तो आप लेफ्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस है गाइस? नो। क्योंकि अगर ये चीज आपने गलत लिंक की तो पूरा ही ट्रांसक्रिप्शन आपका गलत ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, अगर आप अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलते हैं। मुझे ऐसा जब मैंने अपना स्पीकर लगाया, जब हेडसेट्स लगाए, तो मुझे सबसे पहला जो आवाज आया वो राइट हैंड साइड में आया, तो मैंने राइट लेके चला और मैंने सेव कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे चैनल 1 और चैनल 2 की जगह राइट और लेफ्ट हो गया है, विच मीन्स ये जो ऊपर वाला है ये आपका राइट स्पीकर है और जो नीचे वाला है वो आपका लेफ्ट स्पीकर है। तो अब आपको बाइफिकेशन मिल गया कि कौन सा राइट स्पीकर है और कौन सा लेफ्ट स्पीकर है।
ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है उसका जो स्पीकर है वो आपका राइट स्पीकर है, और जो नीचे वाला स्पीकर है वो आपका लेफ्ट स्पीकर है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस ऊपर वाले की आवाज आपके राइट साइड के कान में ही आएगी, राइट साइड के हेडफोन में ही आएगी, और नीचे वाले की आपको लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है, अब जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपको सेगमेंट बनाना है। तो गाइस सेगमेंट बनाने का मतलब क्या होता है, हर एक स्पीकर का जो भी कंटेंट है या जो कुछ भी उसने बोला है उन सबको अलग अलग बॉक्सेस में लिखना। इसमें 2 स्पीकर है तो स्पीकर 1 ने जो बोला उसको इस बॉक्स में लिखो, और स्पीकर 2 ने जो बोला उसको नीचे वाले बॉक्स में लिखो। दोनों स्पीकर की बातें एक बॉक्स में नहीं लिख सकते, दोनों स्पीकर का कंटेंट अलग अलग सेगमेंट में लिखना है। और चाहे तो उसने एक आधा शब्द भी क्यों ना बोला, अगर उसने ओके भी बोला होगा तो भी उसको अलग लिखेंगे, और दूसरे स्पीकर ने बोला होगा ठीक है तो भी उसको अलग में लिखेंगे। चाहे एक शब्द बोला हो, चाहे 10 शब्द बोले हो, चाहे 20 सेंटेंसेस बोले हो, सबका कंटेंट, दोनों स्पीकर का कंटेंट अलग अलग बॉक्सेस में लिखना है। और एक सेगमेंट का ड्यूरेशन, मतलब एक सेगमेंट बनाने का ड्यूरेशन मैक्सिमम 15 सेकेंड। एक स्पीकर का बात आप 15 सेकेंड तक का ही ले सकते हो और उसका ट्रांसक्रिप्शन करोगे, उससे ज्यादा का नहीं। बट अगर आपको लगता है कि आपका स्पीकर कंटिन्यूअसली 20 सेकेंड तक बोला है, तो आप उस सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, उसको स्प्लिट करोगे, और लॉजिकल पॉज के हेल्प से उस सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ के अलग अलग बॉक्सेस में डालोगे, क्योंकि एक बॉक्स में 15 सेकेंड से ज्यादा का स्पीच आप नहीं लिख सकते, टूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब कुछ क्वेश्चन है किसी का? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मुझे इस पे सबसे पहला सेगमेंट बनाना है। अब मैं जब ध्यान से सुनती हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला मैं चालू करती हूँ मेरा राइट स्पीकर का। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, जब मैं राइट स्पीकर का कंटेंट बनाने जा रही हूँ तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया, देख रहे हैं आप? गाइस यस नो मे बी में जवाब दीजिए। Yes, ma'am. और सिर्फ एक ही पर्सन बोल, थोड़ा सा, हाँ करेक्ट, सभी जवाब दीजिए मुझे। तो जब मैंने बोला कि मुझे राइट हैंड साइड के पर्सन का ट्रांसक्रिप्शन करना है तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली चुप हो गया, वरना अब तक क्या हो रहा था, दोनों एक ही साथ में बोले जा रहे थे। तो जब दोनों स्पीकर एक साथ बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है और आप उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाओगे, राइट? तो ऐसे सिनेरियोज में जब मुझे राइट हैंड साइड वाले का बनाना है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला अपने आप चुप हो गया, बट मान लो अगर मुझे लेफ्ट वाले का बनाना है तो राइट वाला चुप हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं राइट हैंड साइड वाले से। अब इसने क्या बोला है? हाँ जी जी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि अभी तक तो ये और बोल रही हो सकती, तो हम इसको आगे तक खींच लेते हैं। मान लो हमने इतना बनाया तो देखो सेगमेंट इज ओवरलैपिंग विद अदर सेगमेंट। ठीक है, आप 15 सेकेंड से ज्यादा का बना ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ अगर मैं और आगे भी ड्रैग करूं तो ये नहीं होगा, आपको मैक्सिमम 15 सेकेंड्स का ही बनाना होगा। ठीक है, तो लेट्स से यहां तक मेरा पहला, ऊपर की लाइन देखिए, यहां तक मेरा स्पीकर बोला, मैं यहां तक ले लेती हूँ, यहां तक। नीचे वाले को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो तो वैसे भी म्यूट है, मैं ऊपर वाले के लिए बना रही हूँ। हाँ जी जी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। उससे बोला हाँ जी, राइट? तो हाँ जी, आप अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज में आप काम जो जिसमें भी आप कर रहे हैं, आप कौन सी लैंग्वेज पे करने वाले हैं इस वक्त? मेरी ओके, तो आप उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इसने बोला हाँ जी, ठीक है, ऐसा बोला, तो आपने वो वैसा का वैसा लिख दिया। बट अगर मान लो ये स्पीकर ने इतना ही बोला, मतलब कुछ 5 सेकेंड तक के लिए बोला, लेकिन मान लो कि इससे पूरा 20 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली बोला होता, तो आप क्या करते? और मैंने आपको बोला है कि आप 15 सेकेंड से ज्यादा का एक सेगमेंट बना ही नहीं सकते, राइट?
तो आप उस सिनेरियो में सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन द लॉजिकल पॉज। अब लॉजिकल पॉज कैसे, हम इसका एग्जांपल मैं आपको इजियर वर्जन में देती हूँ। मैं इस ऑडियो के कंटेंट के उस पे नहीं जाती गाइस, मैं आपको मेरा खुद का कंटेंट बताती हूँ, क्योंकि अगर हम इसके बेसिस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ ठीक है, ये मैंने बोला, ठीक है, मेरा नाम अदिति है, मैं शेप में काम करती हूँ और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। अब आप मान लो कि ये जब मैंने बोला तो मुझे 20 सेकंड लगा ये बोलने में। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, हो सकता है कि ऑब्वियसली इसमें तो 20 सेकंड नहीं लगेगा, बट आप सिर्फ इमेजिन करो कि मुझे इसमें इस सेंटेंस को बोलने में 20 सेकंड लग गए, बट मैं तो सिर्फ 15 सेकंड का एक सेगमेंट बना सकती हूँ। उसके बाद तो मुझे खुद ही टूल एरर देगा कि 15 से ज्यादा का सेगमेंट बन नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगी, मेरा नाम अदिति है, मैं शेप में काम करती हूँ और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, ये मैं दूसरे वाले सेगमेंट में डाल दूंगी, जो कि भी मेरा राइट का ही होगा, क्योंकि मैं राइट का ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, आप सोच रहे होंगे मैंने और क्यों, और से क्यों लिया, क्योंकि और एक लॉजिकल पॉज है, और यदि, क्योंकि, इसलिए, इस तरह के अगर सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं तो आप वहां से सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, या फिर फुल स्टॉप, जहां पे अगर मैंने बोला था मेरा नाम अदिति है, मैं शेप में काम करती हूँ, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो मैं अहमदाबाद में रहती हूँ से भी मेरा सेंटेंस कट कर सकती हूँ। अगर सेंटेंस में लॉजिकल पॉज नहीं है तो जहां पे भी सेंटेंस खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो मैं दूसरे से उस सेंटेंस को तोड़ दूंगी 2 पार्ट में, अगर सेगमेंट 15 सेकंड से ज्यादा का है तो। अगर ये सब मेरे को बोलने में 15 सेकंड ही लगे होते तो मैं उसको आराम से यही लिख दूंगी एज इट इज। क्लियर है सबको ये गाइस? यस। ओके, अब मान लो जब मेरा राइट हैंड साइड का हो गया तो अब मैं लेफ्ट साइड स्पीकर का बनाऊंगी, तो अब मैं सुनूंगी लेफ्ट वाला क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो उसने अभी तक तो इतना ही बोला, तो ये देखो मैंने यहाँ लाके ये छोड़ दिया और ये स्टार्ट जहां से हुआ है यहाँ मैडम से ये और उसने लेफ्ट वाला अनम्यूट कैसे हुआ? क्या बोल रहे हैं? ये लेफ्ट वाला म्यूट था ना, ये अनम्यूट कैसे हुआ? क्योंकि अब मैं लेफ्ट का बना रही हूँ ना बॉक्स, तो ऑब्वियसली जब मैं उसका बनाऊंगी तो वही बोलेगा, तो राइट वाला चुप हो जाएगा ना। पहले मैं राइट वाले का बना रही थी तो राइट वाला बोल रहा था, अब मैंने यहाँ आके लेफ्ट वाले का बनाना है तो लेफ्ट वाला बोलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है आपको राइट का ही बनाना है तो राइट वाला बोलेगा, लेफ्ट चुप हो जाएगा। मैंने लेफ्ट सेलेक्ट किया इसलिए लेफ्ट वाला बोल रहा है अभी। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसने जो कुछ भी बोला इतना यहां तक, तो वो मैं यहां लिख दूंगी। तो इस तरह से आपको सारे सेगमेंट्स बनाने हैं लेफ्ट और राइट के पूरे इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब भी स्पीच इन्वॉल्व होती है, जब भी स्पीकर कुछ बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन हम उसी पार्ट का कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। जहां पे स्पीकर ने कुछ बोला नहीं, हम वहां का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब ही ये होता है कि जो भी सुन रहे हो आप ऑडियो में, आप उसको वर्ड में लिख दोगे। बट अगर स्पीकर कुछ बोल ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे ऐसे सिनेरियोज में? अगर स्पीकर बोल रहा है तो आप यहाँ पे स्पीच ही सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे राइट और लेफ्ट किसका आप सेगमेंट बना रहे हो वो सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे। बट मान लो कि वहां पे कोई, अगर पूरे सेगमेंट में, मान लो ये इतना पूरा जो सेगमेंट जो मैंने बनाया, मैंने मान लो ये इतना बनाया है, ठीक है, इतने पूरे सेगमेंट पे स्पीकर की कोई आवाज ही नहीं थी, स्पीकर एकदम चुप था, एकदम शांत, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बट पीछे से पूरे इतनी एरिया में आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी,
बैकग्राउंड नॉइज आप लिख सकते हैं चाहो तो। बैकग्राउंड नॉइज का मतलब होता है यहाँ पे इस तरह की आवाजें, जैसे कि मशीन चल रही हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, या फिर रोड पे हॉर्न बजने की आवाजें आ रही हो, या फिर मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो पीछे। ठीक है, इस तरह की नॉन ह्यूमन वॉइस जो आवाज इंसान नहीं कर रहे हैं, जो मशीन से आ रही है, या फिर मान लो कुत्ता भौंक रहा है, एनिमल्स का आवाज आ रहा है। ठीक है, इस तरह की सारी आवाजें आ रही है, लेकिन अपना जो मेन स्पीकर है वो चुप है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में आप स्पीच की जगह यहाँ लिखेंगे नॉइस, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये जो सेगमेंट का स्पीकर सिलेक्शन है वो नल हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. लेकिन मान लो कि आपको वो नॉइस स्पीकर के बात करने के साथ साथ बीच बीच में आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ सेलेक्ट स्पीच ही करेंगे, क्योंकि बात तो कर ही रहा है वो, लेकिन उसके बीच में आपको ऐसी अजीबोगरीब आवाज आ रही है मशीन चलने की, या फिर ड्रिल मशीन का काम चल रहा है, ऐसा कुछ। तो अगर आप वो राइट स्पीकर के उसमें आ रही है, और मान लो ये उसने बोला है, तो समझ लो उसने बोला मेरा नाम अदिति है, मैं शेप, और जैसे ही उसने शेप बोला आपको पीछे से कुछ नॉइज आया, 3 नंबर दबाएंगे आप। 3 नंबर मतलब अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे 3 नंबर की जो की है वो दबाएंगे, तो आपको ऐसे टैग्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला है NS मतलब नॉइज, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब ये नॉइज की आवाज आई, तो जैसे ही स्पीकर ने बोला मेरा नाम अदिति है, मैं शेप, और उसके बाद वो हो गया स्पीकर चुप, और पीछे से अचानक से आपको 2-3 सेकंड के लिए नॉइस की आवाज आई, तो आप ये 3 नंबर दबा के नॉइस का टैग डालोगे। नॉइस की आवाज जैसे ही खत्म हुई, उसके बाद में उसने जो कुछ भी बोला वो बाद में लिख दोगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. लेकिन मान लो कि जब नॉइस की आवाज आ रही थी, आपको नॉइस के साथ साथ स्पीकर चुप नहीं हुआ। यहाँ पे तो क्या हुआ था, जैसे ही उस नॉइस की आवाज आई स्पीकर चुप हो गया, और उसके बाद उसने जब नॉइस की आवाज खत्म हुई फिर उसने बोलना स्टार्ट किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि नॉइस भी पीछे से आएगा, स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोस में मान लो इतना पार्ट स्पीकर नॉइस के साथ साथ ही बोलता गया, और आपको सुनाई पूरा दिया कि उसने बोला क्या है। भले ही पीछे से कुछ आवाजें आई, मान लो कि वो गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा है, उसने हॉर्न बजाया, वो हॉर्न बजाते बजाते भी बोल ही रहा था, और आपको सुनाई दिया और समझ आया कि उसने बोला क्या है, तो वो पार्ट आप बीच में लिख दोगे जितना भी नॉइस के साथ में उसने बोला है। और जैसे ही नॉइस खत्म हुआ और उसके बाद जो आपको सुनाई दिया वो आप उस नॉइस टैग के बाहर लिख दोगे, और यहाँ पे एकदम बीचों बीच में आप वो पार्ट लिख दोगे जो उसने नॉइस के साथ बोला। क्लियर है सभी को ये? यस। Clear, ma'am. उसके अलावा आप मान लो कि अगर नॉइस इतना जोर से था कि आपको स्पीकर साथ साथ भी बोल रहा था नॉइस के, लेकिन वो शायद ड्रिल की आवाज या हॉर्न बजने की आवाज या कुछ तरह का आवाज इतना जोर से था कि जब स्पीकर उस नॉइस के साथ भी बोल रहा था तब भी आपके समझ में कुछ आया ही नहीं, वो पार्ट कट गया उस आवाज से। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में 1 नंबर दबाएंगे और आपको ऐसा एक डबल पैरेंथेसिस डबल ब्रैकेट दिखेंगे, आप वो लगा देंगे। 1 नंबर दबाने पे आएगा ये, और इसके बीच में जो भी स्पेस आ जाएगी वो सब हटा देंगे। इसका मतलब है, डबल पैरेंथेसिस का मतलब है अनइंटेलिजिबल स्पीच, मतलब ऐसा कोई शब्द, ऐसा कुछ सेंटेंस जो आपको समझ नहीं आया। स्पीकर ने बोला जरूर है बट आपको समझ नहीं आया है। और ये आप तब भी डाल सकते हैं जब आपको कोई चीज समझ नहीं आई, या फिर बैकग्राउंड नॉइज या कुछ इतना जोर से था जिसकी वजह से वो पार्ट कट गया, तो आप उसकी जगह डबल पैरेंथेसिस भी डाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? जी मैम। ठीक है, अब हम ये सेम एग्जाम्पल दूसरे टैग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे दूसरा हम डिस्कस करते हैं बैबल।
अब मान लो बैबल का मतलब यहाँ पे सबसे पहले गाइस ये होता है जहां पे बैकग्राउंड में से आपको किसी इंसानों की आवाज आती है बट हमारा मेन स्पीकर एकदम चुप है। मान लो ये इतना पूरा हरा पार्ट जो हाईलाइटेड है इसमें आपको ऐसी आवाजें आ रही है जहां पे स्पीकर तो एकदम चुप है, स्पीकर की कोई आवाज नहीं है, ना वो कुछ बात कर रहा है, पीछे से लोगों के चिल्लाने, चीखने या फिर हंसने या फिर खांसने या छींकने की आवाजें आ रही है बैकग्राउंड में से। अब चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हो, कितने भी लोग हो सकते हैं या कोई एक आधा भी हो, लेकिन पीछे से अगर वो हंस रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खांस रहा है, ठीक है, इस तरह की आवाजें पूरे सेगमेंट में आपको आ रही है बट हमारा स्पीकर एकदम शांत है, तो आप सेगमेंट ही पूरा बैबल का बनाओगे। यहाँ आप देखो ऑटोमेटिकली नल हो जाएंगी डिटेल्स और यहाँ आपको फिर ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर स्पीकर के बात करने के साथ आपको ऐसी आवाज आ रही है तो ये स्पीच डालोगे, यहाँ पे कौन से स्पीकर की बात करने के साथ ऐसी आवाज आई, राइट, आप ये लिखोगे सब कुछ। मान लो स्पीकर ये बोला, जैसे ही उसने बोला मेरा नाम और आपको अचानक से पीछे से खांसने की आवाज आई किसी की और स्पीकर चुप हो गया, तो 3 नंबर दबाओगे, बैबल डालोगे और उसके बाद जैसे ही वो आवाज बंद हुई उसके बाद स्पीकर वापस बोलने लगा तो वो सब आप आगे लिख दोगे। सेम जैसा अभी हमने नॉइस के साथ किया था वो हम बैबल के साथ भी करेंगे। मान लो बैबल की आवाज आने के साथ साथ भी भले लोग पीछे से चीख रहे हैं या खांस रहे, स्पीकर भी बोले जा रहा है साथ में, तो जितना भी उसने उस आवाज के साथ साथ में बोला है वो अंदर चला जाएगा और बाकी का सारा बाहर। बट मान लो कि इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज इतनी जोर से थी कि अब जो स्पीकर बोल रहा था वो आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप डाल देंगे डबल पैरेंथेसिस, और जब वो आवाज खत्म हो गई उसके बाद आपको जो कुछ भी सुनाई दिया वो आप लिख देंगे बाहर। क्लियर है सबको ये? Clear, ma'am. जी मैम। ओके। उसके अलावा हमारे पास है ओवरलैप। ये हम इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ओवरलैप कभी होगा ही नहीं। दो स्पीकर एक साथ बोल रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं इसका स्पीच बनाती हूँ तो ये म्यूट हो जाता है और जब मैं इसके बारे में जब मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट करती हूँ तो ये वाला अपने आप चुप हो जाता है। तो एक ही टाइम पे दोनों स्पीकर बोल रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। गाइस दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमारे पास ड्यूअल चैनल फाइल नहीं होती है, सिंगल चैनल फाइल होती है जिसमें एक ही चैनल पे दोनों स्पीकर बात करते हैं। तो कई बार वहां पे क्या होता है ना, दोनों एक साथ बोलने लगते हैं तो हम ओवरलैप का टैग यूज करते हैं। बट यहाँ पे दोनों कभी एक साथ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर वो दोनों एक साथ बोलते भी हैं लेकिन जब हम उनको प्ले करते तो एक अपने आप ही चुप हो जाता है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो ही नहीं सकता। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग ओवरलैप यूज नहीं करेंगे, तो आप ओवरलैप को अवॉइड कीजिए। फिर आता है म्यूजिक। अब ये सेम उसी तरह से यूज होगा जैसे बैबल और नॉइस हुआ था। पूरे सेगमेंट पे आपको स्पीकर की कोई आवाज नहीं आ रही है, बस पीछे से गाने बज रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, म्यूजिक आ रही है आपको, कोई तबला बज रहा है, ढोल बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, या फिर कोई बॉलीवुड के गाने ही चल रहे हैं, कोई पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं, कोई हिंदी सॉन्ग्स, जो भी आपको जिस तरह के भी गाने बज रहे हैं इस तरह की कोई म्यूजिक की आवाज आ रही है, पर हमारा स्पीकर एकदम शांत है, उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है, तो आप पूरा ही सेगमेंट म्यूजिक का बना देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिटेल नल हो जाएगी और आपको ट्रांसक्रिप्शन करना ही नहीं है। बट मान लो स्पीकर की आवाज या स्पीच के साथ साथ म्यूजिक बज रहा है या बीच में कहीं बजा, तो क्या करेंगे आप, स्पीच ही डालेंगे या जो भी आपका स्पीकर होगा राइट या लेफ्ट उसके बारे में डाल देंगे। मान लो उसने ये बोला मेरा नाम अदिति है, मैं शेप में काम करती करती होने के बाद वो हो गया चुप और फिर आपको आवाज आई म्यूजिक की, तो आप म्यूजिक का टैग डालोगे और उसके बाद जैसे ही म्यूजिक बंद हुई उसने जो कुछ भी बोला वो आप बाद में लिख देंगे। बट अगर म्यूजिक के साथ साथ ही वो बोले जा रहा है तो आप ये पूरा पार्ट म्यूजिक के बीच में डाल देंगे और जितना भी म्यूजिक के बाद सुना तो ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे ही। अब मान लो कि वो म्यूजिक की आवाज इतनी जोर से थी कि जो भी स्पीकर बोला वो सुनाई नहीं दिया, तो वहां आप डबल पैरेंथेसिस डाल देंगे, ठीक वैसे ही जैसे नॉइज और बैबल में डाला। क्लियर है सभी को ये गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो टैग्स हमने यूज किए हैं ये थे 3 नंबर के टैग। अब जब आप 3 नंबर के अलावा 1 नंबर दबाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है डबल पैरेंथेसिस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बट अब तक हम डबल पैरेंथेसिस टैग्स के बीच में यूज कर रहे थे जहाँ पे शायद बैबल, नॉइज या म्यूजिक के साथ
आपको कोई स्पीकर की बात समझ नहीं आई। बट उसके अलावा भी अगर आपको लगता है, जैसे मैंने बोला मेरा नाम अदिति और मैंने कुछ बोला और फिर बोला है, अब आपको बीच में जो मैंने अजीबोगरीब शब्द बोला आपको समझ नहीं आया, तो आप एक नंबर दबा के ये लिख के आगे है लिख सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस में जब स्पीकर नॉर्मली भी बात कर रहा है और उसने कुछ अजीबोगरीब सेंटेंस बोला, या फिर मे भी शायद उसने सब कुछ ठीक बोला, आपके समझ में नहीं आया, तो उस जगह के बदले आप डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। इज इट क्लियर? Yes. अब उसके अलावा जब आप 2 नंबर दबाते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिलर वर्ड्स दिखेगा। फिलर वर्ड्स मतलब वर्बल नॉट्स गाइस, इस तरह से जैसे हम जब बात करते करते फोन पे भी बात करते हैं या दोस्तों से बात करते हैं, हम ऐसे करते हैं इस तरह से जब मुंह से ऐसी हमिंग आवाजें निकाल निकाल के हम बोलते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली कोई शब्द नहीं बोलते बट मुंह से ऐसी आवाजें निकालते हैं, उसको बोलते हैं फिलर वर्ड्स। तो जब मान लो स्पीकर ने बोला मेरा नाम तो जो भी वो फिलर वर्ड होगा, मान लो, मुझे ये नहीं पता ये इस लैंग्वेज में कौन सा जो फिलर वर्ड है वो सही है, क्योंकि ये लैंग्वेज मैं नहीं जानती। तो लेट्स से अगर ये वो शब्द है, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, पर अगर मान लो ये वो शब्द है तो मैंने ये डाल दिया, तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप काम करेंगे, जब आप 2 दबाएंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज के फिलर वर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप वो फिलर वर्ड जैसा स्पीकर ने बोला है वैसा यूज कर लेंगे। खुद से हम कोई भी फिलर वर्ड टाइप नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके स्पीकर ने कुछ ऐसा फिलर वर्ड बोला जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो आप इस लिस्ट में जो भी मिलता जुलता फिलर वर्ड है वो लिख लेंगे, डाल देंगे यहाँ से, लेकिन खुद के मन से कोई फिलर वर्ड टाइप नहीं करेंगे, टूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अलावा आप किसी भी तरह के नंबर को इंग्लिश में नहीं लिखेंगे या फिर किसी भी तरह के शब्द को इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। अगर मैं बोलती हूं आज वेदर कितना चेंज हो गया है, तो वेदर और चेंज को भी मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, मैं उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही लिखूंगी। आज वेदर, अभी हिंदी में मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता लिखना, कितना चेंज हो गया है, इस तरह से लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि वेदर चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा गाइस, किसी भी तरह के अंग्रेजी शब्द हम नहीं लिख सकते। आपको जो भी लिखना है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही लिखना है। अगर आपको कोई स्पीकर अगर बोल रहा है मेरा मोबाइल नंबर है 9630, ऐसे ही लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि 96, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। जो कुछ भी लिखेंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही लिखेंगे। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. यस। ठीक है, सो बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है जो एक्स्ट्रा है। सो आपको यही कंसेप्ट फॉलो करते हुए फाइल पे वर्क करना है। आई नो अभी सुनने में तो थोड़ा लगेगा इजी, पर जब हम वर्क करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइस। एंड आई नो जब हम वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं दिमाग में, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल है जिसके आंसर्स हमें चाहिए। सो डोंट वरी, आपको जैसे ही वर्क करने के लिए फाइल असाइन की जाएगी और इस फाइल को असाइन करने के बाद आपको लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको बहुत सारे डाउट्स है जो आपको क्लियर करने हैं, तो आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आप उनसे उनको बता सकते हैं, और हम यहाँ पे एक सेशन अरेंज करेंगे जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस? Sure, ma'am. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हम अगर ये जो सारी वॉइस है इससे पहले राइट में सारी करनी है या 15-15 सेकंड की करके फिर करनी है?
समझी नहीं, आप एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैंने कहा कि ये जो आपने कहा ना 15 सेकंड का ये बनाना है हमने, हाँ हाँ, पहले 15 सेकंड राइट फिर लेफ्ट करना या 15 सेकंड राइट करके फिर नेक्स्ट 15 सेकंड राइट करना है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर सेगमेंट को 15 सेकंड का ही हो। मान लो कि पहले शुरुआत का 2 सेकंड का हो, जितना भी स्पीकर ने बोला है उस हिसाब से, ठीक है। अब जब आप ऑडियो प्ले करते तो जब आप ये प्ले करेंगे तो इतना पार्ट जब स्पीकर बोल लेगा ना यहाँ तक, तो ये पहला स्पीकर इतना बोला है, तो ऑब्वियसली अभी दूसरे ने उसका जवाब दिया होगा, तो आप इसके नीचे लेफ्ट का बनाएंगे, फिर राइट का बनाएंगे, फिर लेफ्ट का बनाएंगे, क्योंकि ये जो फाइल है ना ये जनरल कॉन्वर्जेशन है। आपको दिख रहा है यहाँ पे जनरल कॉन्वर्जेशन, जहां पे अगर जनरल कॉन्वर्सेशन का मैंने आपसे पूछा आप कैसे हो, तो आपने बोला मैं ठीक हूँ, और बताओ क्या कर रहे हो, तो आप उसका जवाब दोगे, राइट। तो ये कॉन्वर्सेशन को भी आपको कॉन्वर्सेशन के तरीके से ही बनाना है। अगर पहले स्पीकर ने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरे ने भी वालेकुम अस्सलाम बोला है, तो पहले स्पीकर का जितना भी कंटेंट है वो ये जरूरी नहीं कि वो 15 सेकंड का हो सकता है उसे 5 सेकंड ही बोला हो सकता है 10 सेकंड बोला, 15 सेकंड मैक्सिमम है। तो जब पहले वाले ने बोला अस्सलाम वालेकुम तो वो आप यहाँ लिख दोगे, तो दूसरे वाले ने जब उसका जवाब दिया तो आप फिर लेफ्ट का बनाओगे, फिर आप राइट का बनाओगे, आप फिर लेफ्ट का बनाओगे, वैसे, ठीक है। आपको कॉन्वर्जेशन के जिस जैसी कॉन्वर्जेशन है वैसा ही सेगमेंट भी बनाना है। ऐसा नहीं कि वो जो पहला वाला बोल रहा है पहले उसकी कहानी लिख दी और फिर दूसरे वाले की, फिर कोई मतलब नहीं बना। तो जिस सीक्वेंस में बात चल रही है ना उसी सीक्वेंस में ही आपको अपने सेगमेंट बनाने, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन है गाइस? नंबरिंग है ये, इसका बता दें, ये जो स्पीच और राइट के ऊपर जो नंबरिंग है इसका बता जी दें। जी, ये गाइस ये ऑटोमेटिकली कैप्चर होती है। अभी मान लो जैसे मैंने पहला सेगमेंट में जब मैंने इस राइट वाले स्पीकर का बनाया तो उसने इतना यहां तक ही बोला, तो मैं इसको खींच के जब यहां तक ले आऊंगी तो मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और स्पीकर ने 4 सेकंड 952 मिली सेकेंड्स तक बात किया है। तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा, जैसे आप इस बॉक्स को खींचोगे कम करोगे ये ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा, आपको मैनुअली इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। फिर जब आपने नीचे वाले स्पीकर का बनाया लेफ्ट वाले का और नीचे आए तो आपको पता चला उसने तो शुरुआत में अभी इतना ही बोला है, तो आप क्या करोगे इसको खींच करके यहाँ नीचे वाले को इतना कर दोगे, तो यहाँ पे उसने इतना ही बोला है। फिर जब आप वापस नीचे राइट वाले पे आओगे हाँ तो जी, अब जी, आपको ठीक पता चला ठाक। राइट वाला है, हमने शुरुआत में इतना तो ले लिया था उसका, तो अब हमने उसका जो दूसरा बनाना है वो यहां से बनाना है, ये देखिए। तो अब हम उसको आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे लाके छोड़ेंगे और यहां से मान लो उसने यहां तक बोला, यहां से चालू किया और यहां तक बोला, ये देखो इतना। ये जो बीच में इतना सीधा सीधा लाइन है ना वहां पे स्पीकर कुछ नहीं बोलता है, तो उसको हमें सेगमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। अब उसने बोलना है यहां से चालू किया तो इस बॉक्स को यहां से लाके स्टार्ट करेंगे और यहां लाके उसे खींच के जितना लंबा कम करना है वो करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 सेकंड से स्टार्ट किया और 15 सेकंड तक बोला, उतना ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया। अब उसने जो भी बोला इधर, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ तो आप ये जो भी इसने बोला वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने अभी इसका इतना पार्ट बनाया नहीं है, तो आप क्या करेंगे वापस जब यहाँ नीचे आएंगे लेफ्ट के पास, तो जब आप लेफ्ट पे आएंगे तो यहां से यहाँ आएंगे और वो लेफ्ट जो है वो यहां तक इतना बोल रहा है, तो आप उसको यहां तक जो भी उसने बोला है वो आप यहाँ लिख देंगे। जब आप फाइल पे एक्चुअली वर्क करेंगे ना गाइस तभी आपको ऐसे समझ आएगा कि कहाँ से बॉक्स को ड्रैग करना है और कहाँ कितना कैसे बनाना है सेगमेंट, ठीक है। ठीक। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइल असाइन होने के बाद अगर आपको कुछ कंसर्न्स है तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा ये, और जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो भी आपको लीड कर रहे हैं वो जीनल जी को बता देंगे और हम लोग फिर रिफ्रेशर्स या फिर लेट्स से आपका डाउट क्लियरिंग सेशन जो भी है हम फ्यूचर में अरेंज करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू आपने ये सेशन अटेंड किया, ओके, ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू जीनल। थैंक यू अदिति, थैंक यू शानू।
सब पता चल गया आपको, ये रिकॉर्डेड है, सो डोंट वरी, आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। ओके, तो शानू जी और कोई क्वेश्चन आपकी टीम से कुछ है? Now there is no question, sir. If there is any questions, we will. ओके, श्योर, थैंक यू टीम, Thank you, sir. थैंक यू, बाय। Bye. Thank you, Aditi ma'am.